Good evening, everyone. Is anyone there? Good evening, sir. Good evening, Pralipta. Pralipta, last class, when you got, जब आपको कुछ नेटवर्क इशू आया, तो मैं Yes, sir. उस क्लास इतना मतलब जो पढ़ाया हूँ आपको शायद याद होगा, अप टू मैं स्क्वायर रिलेशन तक ही गया हूँ. वो क्लास थोड़ा स्लो गया. Okay, sir. गया हूँ सिर्फ रेसिप्रोकल रिलेशन. ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक क्या है? Sin theta, that means theta is not multiplied with sin. Then after that reciprocal relation, square relation, इतना तक ही गया हूँ. आज थोड़ा क्लास स्पीड Okay, sir. करेंगे. Yeah. मींस फिर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन देखेंगे, फिर 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा में क्या होगा, फिर एडिशन फार्मूला, सब्ट्रैक्शन फार्मूला, ये सब चीज आज डिस्कशन करेंगे. अगर पॉसिबल हो सका तो मैं मतलब ये आज की सेशन में पूरा ये सब चीजें एंड करूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास आई कैन प्रोसीड टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. Okay, sir. Okay. Pooja also joined. Priyam is also there. Okay, so let's start. See, okay, everyone pay attention. See, up to now we have discussed reciprocal relation. That means sin theta and cosec theta are reciprocal of each other, cos and sec are reciprocal of each other, tan and cot are reciprocal of each other. And then we will come across the complementary relation. Complementary relation is what? See, this is a right angle triangle. If this angle is theta, if I am taking A, B, C, so as this angle is 90 degree, so clearly this angle will be how much? Can anyone say? This will be clearly 90 minus theta, like this. So now see, as per definition, sin theta, sine of any angle is opposite side by hypotenuse. For theta, opposite side is AB and hypotenuse is fixed, AC. Cos theta is adjacent side, that is we call it as also base. Base by hypotenuse, BC by AC. Now let's change the angle. एक मिनट लाइन पे रहो, ये एक्चुअली उस साइड से कुछ आ रहा है. Okay, now let's change the angle. Angle change कर देंगे. Angle क्या change करेंगे कि 90 minus theta. So if I take sin of 90 minus theta, जैसे मार्क करो, जब मैं एंगल थीटा ले रहा हूं, when I am taking the angle as theta, so sin of angle, this angle is opposite side by hypotenuse. ये है उसका opposite side और ये है hypotenuse. तो जब मैं एंगल
इसको ले लूंगा 90 माइनस थीटा को जब एंगल ले लूंगा, इसके लिए ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट साइड BC हो जाएगा and hypotenuse is fixed AC. So sin of 90 minus theta, it will be BC by AC. If I take cos of 90 minus theta, cos is what? Adjacent side by hypotenuse. So for 90 minus theta, the adjacent side is AB and hypotenuse is AC. So AB by AC. AB by AC. So now you mark here cos theta जो आ रहा है sin 90 minus theta भी वही आ रहा है. So cos theta and sin 90 minus theta both are equal. Similarly, cos of 90 minus theta is AB by AC and sin theta is AB by AC. So ये दोनों same आ रहे हैं. So this gives us the complementary relation. Complementary relation क्या होगा कि sin of 90 minus theta, sin 90 minus theta, it will be cos theta. जिसको याद नहीं है नोट डाउन कर लो. cos of 90 minus theta equal to sin theta. Then if I take tan of 90 minus theta, you see हमें already we learn that tan theta is at opposite side by adjacent side. So tan theta is AB by AC and tan of 90 minus theta will be BC by AC क्योंकि 90 minus theta के लिए ये opposite side है, BC is the opposite side, BC by AB. So which is equal to cot theta क्योंकि cot theta is adjacent side by opposite side, BC by AB. So tan of 90 minus theta equal to cot theta. Similarly, cot of 90 minus theta equal to tan theta. बाकी और दो ही रहे, sec of 90 minus theta equal to cosec theta. You can write it yourself. जिसको लिखना है sec of 90 minus theta equal to cosec theta and cosec of 90 minus theta equal to sec theta. Then so sec 90 minus theta equal to cosec theta and cosec of 90 minus theta equal to sec theta. So this gives us the complementary relation. Complementary relation ये हो गया. So should I erase it and proceed? किसी को लिखना है? सर इस रिलेशन का नाम क्या बता फिर से बोलेंगे? हाँ, कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशन लिख देता हूं. देखो मैं आपको स्टार्टिंग क्लास में एक दिन लिख देता हूं फिर बोलता हूं. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशन. कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशन याद करो, मैं जब एंगल स्टार्ट किया था, जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था, एंगल के बारे में डिस्कशन किया था, फिर उसमें दो टर्म बोला था. One is complementary, another is supplementary. Complementary क्या है? If two angles sum is 90 degree, then they are called complementary to each other. If sum of two angle is 180 degree, then they are called supplementary to each other. तो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये जो दो एंगल देखो थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये जो दो एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा एंड दिस 90 माइनस थीटा, दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर क्योंकि दोनों मिलके 90 डिग्री बनाएंगे. सो इसलिए for this reason this relation is called complementary relation. तो नोट डाउन कर लो पूजा क्विकली. हाँ सर डन. डन ना? ओके, देन आई एम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट. Next, so
now we'll learn about some standard values of the means कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वो सब डिस्कशन करेंगे। सी प्रियम, साइन 30 का वैल्यू क्या है? प्रियम, you are not responding. अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ सी ओके, प्रियम का कुछ माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है, ठीक। अच्छा अभी हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज। स्टैंडर्ड वैल्यूज में हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 0 डिग्री, 90 डिग्री, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट, एक चीज याद रखो, जो स्टार्टिंग में क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा था, सारे कुछ क्वेश्चंस रेडियन मेजर में भी दिए, तो उससे प्रोसीड करने से पहले याद रखो, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, वन कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री which is equal to 2 pi radian, 2 pi radian। That means one right angle, how much degree, Pooja? One right angle is how much degree? It is 90 डिग्री। देखो, एक पूरा कंप्लीट सर्कल अगर हो रहा है तो हम बोलते हैं पूरा 360 डिग्री बन गया। तो राइट एंगल मतलब सर्कल का 1/4 ये। तो दिस एंगल, वन राइट एंगल, इट इज 90 डिग्री। तो कितना रेडियन होगा, इसके साथ 4 डिवाइड हो जाएगा, सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 2 रेडियन। सो रिमेंबर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज। सो टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, ललिता, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया जाता है, याद है क्या? सर no sir, degree to radian। या हेलो सर, ऑडिबल? हाँ सर। पाई बाई 180। या गुड। टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, देखो कैसे कि 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, सो 1 डिग्री विल बी 2 पाई बाई 360, 2 पाई बाई 360 which will be equal to 2 to get cancel, पाई बाई 180। सो अगर 1 डिग्री अगर है तो उसमें x इंटू पाई बाई 180। सो डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे। टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई पाई बाई 180। टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री उसका उल्टा ले लेंगे, टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री 180 बाई पाई। ये अगर किसी को याद नहीं है वो भी नोट डाउन कर लो, रेडियन टू डिग्री, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रेडियन मेजर में भी दे देंगे। टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई 180 बाई पाई। सो सम स्टैंडर्ड वैल्यूज, जैसे 30 डिग्री अगर है, उसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 30 इंटू पाई बाई 180, क्लियरली इट विल बी पाई बाई 6, 30 डिग्री पाई बाई 6। देन 45 डिग्री, it will be 45 into pi by 180, so 45 4 ja 180, so it will be pi by 4। 60 डिग्री, so 60 और 180 कैंसल अगर होगा 3 रहेगा, so it will be pi by 3। then 90 डिग्री, 90 डिग्री तो ऑलरेडी लिख दिया मैंने कि pi by 2, वन राइट एंगल। ओके, सो ये 3 वैल्यू आपको याद रखना है, 30 डिग्री पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4, 60 इज पाई बाई 3, क्योंकि इसी में सारे क्वेश्चंस रिवॉल्व होते हैं।
और कैसे रिलेट करके याद रखना है कि 45 में स्टार्टिंग में 4 है इसलिए पाई बाई 4 होगा। 30 एंड 60 दे इंटरचेंज ईच अदर, मींस यहाँ पे पाई बाई 6 है तो 60 का स्टार्टिंग है 6, तो ये इसके साथ इंटरचेंज हो रहा है, और 30 का स्टार्टिंग है 3, ये इसके साथ। तो 45 4 स्टार्टिंग में है तो ये पाई बाई 4 रहा, 60 में पाई बाई 3 होगा, 30 में पाई बाई 6 होगा, ऐसे। देन सो अगर सपोज किसी ने पूछा है कि 120 डिग्री, तो दिमाग में चलेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब 60 का 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 60 का 2 टाइम्स मतलब 60 into 2, 60 is pi by 3 into 2, that means it will be 2 pi by 3, like that. Suppose अगर समझ में नहीं है मैं लिख के समझा रहा हूँ। सपोज वी हैव 120 डिग्री, 120 डिग्री is 2 into 60 and 60 we have to memorize, that is pi by 3, so 2 into pi by 3, so it will be 2 pi by 3. so ये सब चीज आपको ओरली करना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे सपोज कोई कहीं पे ऐसा है कि 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, तो उसको हम डिग्री में समझेंगे क्या, 3 पाई बाई 4, दैट इज वी नो पाई बाई 4 इक्वल 45 डिग्री, सो 3 into 45 डिग्री, दैट मींस 135 डिग्री, लाइक दैट। ओके, सो नाउ हाँ, अभी हम ये करेंगे। तो जैसे मैं आपको कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशन अभी बताया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो नाउ कैन यू से मी, पूजा क्वेश्चन इज फॉर यू, आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला दैट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सो कैन यू से मी, साइन 10 डिग्री अगर है वो कॉस कितना डिग्री के साथ इक्वल होगा? पूजा, am I audible to you? Yes, sir. अगर साइन 10 डिग्री कॉस कितना डिग्री के साथ इक्वल होगा? टेन को 90 माइनस क्या करने से 10 आएगा? 90 minus अरे 10 को 90 माइनस समथिंग करके लिखना है, ऑब्वियसली 90 माइनस 80 करने से 10 आएगा ना। हाँ, तो साइन 10 जो है कॉस 80 उससे उनका वैल्यू सेम होगा। सिमिलरली इफ आई टेक साइन 30 okay. और कॉस 60, ये दोनों का वैल्यू भी सेम रहेगा ऐसे। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू सम स्टैंडर्ड वैल्यूज। स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है? ऐसे पहले सपोज 30 डिग्री के लिए देखेंगे, डेरिवेशन कराऊं या सिर्फ वैल्यू दे दूं, याद रख लोगे? डेरिवेशंस में तो साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट होगा ना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री में पूछा ना 1/2 प्रियम। Yes, sir. तो ये एक्चुअली साइन 30 कैसे 1/2 हुआ, वो डेरिवेशन कराऊं या तुम सिर्फ डायरेक्टली याद रख लोगे? टेबल टेबल याद रखने के लिए भी शॉर्टकट है। सर टेबल याद है सर। हाँ, टेबल याद है ना आपको? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं टेबल बता देता हूँ कैसे बनाना है। सो सी, वी हैव टू डू, अच्छा प्रलिप्ता, साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0, साइन 0 का वैल्यू साइन 0 is 0, 0, कॉस 0
cos 0 is 1. 1. अच्छा, तो सी स्टैंडर्ड वैल्यूज किस किस का हमें चाहिए? 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। इन सब का वैल्यू हमें चाहिए। तो फर्स्ट साइन के लिए साइन का वैल्यू क्या होगा, फिर कॉस का वैल्यू क्या होगा, फिर उसके बाद टैन, फिर से कॉट, सेक, कोसेक, उसको रेसिप्रोकेट करके हम निकाल सकते हैं। तो ये टेबल बनाने के लिए एक ट्रिक है, इसको पता है क्या ट्रिक? प्रियम, No, sir. यस सर। बताओ ट्रिक, वो पता है क्या आपको? फर्स्ट 0 से लेके 90 डिग्री तक वी हैव टू पुट 0 1 2 3 1 4 2 3 4, हाँ, राइट इट एज 0 डिवाइडेड बाय 4। 1 2 3 4, और सबको 4 से डिवाइड कर लो, सबको 4 से डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद सबका स्क्वायर रूट लेना है, उसके बाद सबका स्क्वायर रूट, जो आएगा वो होगा साइन का वैल्यू। 0/4 is 0, so it will be its square root 0. 1/4, 1 का स्क्वायर रूट है 1, 4 का स्क्वायर रूट है 2, so it is 1/2. 2/4, 2/4 अगर कैंसल आउट हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर रूट ये √2 रहेगा। फिर 3/4 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √3/2, फिर 4/4 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट है 1। फिर cos के लिए क्या, साइन 0 का वैल्यू जो है cos 90 का वैल्यू वही है, सो इट विल, सॉरी, cos साइन 90 का वैल्यू जो है cos 0 का भी वैल्यू वही है, सो इट विल बी 1, फिर उसको रिवर्स वे में लिख लो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, देन 0। देन tan का वैल्यू, tan थीटा वी नो sin थीटा by cos थीटा, so 0/1 that is 0, 1/2 by √3/2, 2 will get cancelled, it will be 1/√3, then ये √2 get cancelled, 1/1 that equal to 1, 2 get cancelled, √3/1 √3, and 1/0 something by 0 not defined, so it is taken as infinity. something by 0 इसको, sorry, पूरा चला गया, so it is written as infinity. ओके, तो फिर इसको यूज करके फिर कॉट का अगर वैल्यू चाहिए तो ये रिवर्स वे में जाएगा, पहले इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। सेक का जो है कॉस का सेक 0, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2/1 that is √2, sec 60 2/1 that is 2, and sec 90 it will be infinity because something by 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसे ही कोसेक का हम निकाल सकते हैं। So this is the standard value for 0, 30, 45, 60 and 90. And after that let's proceed कि अगर 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू है, सपोज 120 डिग्री कि 150 डिग्री, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उस सिचुएशन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है। ओके, क्या है, see, first thing, one complete circle which is 360 डिग्री, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए। each part is called quadrant. Each part is called quadrant. So we start it like this. Angle, direction of angle में पहले से स्टार्टिंग क्लास से आपको बोला हूं कि direction of angle is taken as anti clockwise. So पहले यहां से स्टार्ट करो, ये 0, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाकर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, फिर यहाँ से और एक राइट एंगल गया तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, फिर यहाँ पे और एक राइट एंगल गया
तो यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री, फिर ये गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर 360 डिग्री। दैट मीन्स वी कैन से 0 डिग्री एंड 360 डिग्री दे कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब दोनों मिल जा रहे हैं। 0 डिग्री एंड 360 डिग्री दे आर कोइंसाइडिंग एक ही जगह पे। सो 0 to 90 डिग्री। अच्छा, ये चीज आपको डिस्कशन किया था क्या, ASTC रूल? क्योंकि प्रियम ने उस दिन रिस्पॉन्ड किया था। यस सर, ये हाँ, कराया गया था। फिर उसके बाद बताया था 90 और 270 में चेंज होता है, 180 360 में सेम रहता है। इफ आई टेक sin 180 minus theta, what will be its value? Can anyone इक्वल टू say? कॉस थीटा। Equal to cos theta? Wrong है। ये- sin ललिता? theta. ऐसा Sir, sin theta. अच्छा, नहीं, ये डिस्कशन किया था sin क्या? सर मैं तो एब्सेंट थी शायद, मतलब उसके बाद अच्छा। मेरे जाने के बाद किया होगा। ये तो पूजा? मैं नहीं चाहिए तो जैसे कि आधा क्लास किया था, उस दिन लेट था। बसोजीत, कोई बता सकता है? अच्छा ठीक है, अगर डिस्कशन नहीं किया हो तो दोबारा कर देता हूँ, 5 मिनट ही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। You see, मैं आपको एक पिक्चर पहले शेयर करता हूँ। मैं आप लोगों को बताया था ASTC रूल, नहीं, ये डिस्कशन नहीं किया। क्यों प्रियम, तुमने जो बोल रहे हो, तुम जो बोल रहे हो, जिस दिन तुमने बताया था ये चीज, एक मेनोमोनिक में बोला था जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एंड यू टोल्ड मी अनदर मेनोमोनिक, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स लाइक दैट। अच्छा, Sir, ये that is not related to this. This is the graph of trigonometry, all sin tan cos. हाँ, So that is for remembering that. confused. That was for remembering that what yes, is yes, yes. equation for Actually sin. मैं उस चीज को, एक्चुअली इसमें जो ASTC रूल होता है मैं बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, और कहाँ पे क्यों मुझे ऐसे याद आया मैं आपको बोलूंगा। सी, फर्स्ट थिंग, दोबारा से शुरू से स्टार्ट करते हैं। सी, ये 0 90 180 270 देन 360, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। 0 डिग्री टू 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 degree to 180 degree, this is second quadrant. 180 to 270, third quadrant. And 270 to 360, this is fourth quadrant. Okay, rule is ASTC, इसको आपको याद रखना है। रूल नेम इज इसका मीनिंग क्या है बताता हूं, ASTC रूल। ASTC ऐसे, एक्चुअली इसको ऐसे याद रखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, लाइक दैट। तो मैं ये जो शॉर्टकट बता रहा हूँ, मतलब मेनोमोनिक जो बता रहा हूँ, उस मेनोमोनिक से मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, छोड़। सो ASTC रूल सेज व्हाट, A for all, A for all, S for sin, T for tan, and C for cos. That means if the angle lies in first quadrant, means 0 degree to 90 degree, then all trigonometry functions, its value will be positive. That means sin 15 डिग्री मैंने लिया, या cos 75 लिया, या tan 24 लिया, या cot 72 लिया, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। देन फॉर सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल जो है कोसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। तो अगर दैट मींस इफ आई टेक sin 105, इट इज पॉजिटिव, बट cos 135 डिग्री, इट विल बी नेगेटिव। मींस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब वैल्यूज नेगेटिव आते हैं। सिमिलरली फॉर थर्ड क्वाड्रेंट,
tan and cot पॉजिटिव, tan अगर पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल है cot, tan and cot both are positive, and for the fourth quadrant that means if the angle lies between 270 degree to 360 degree then cos is positive. अगर cos पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल जो है sec वो पॉजिटिव होगा. So this is called ASTC rule. Just one second, I am sharing you one image. Oh sorry, गलती से मेरा म्यूट हो गया था. Am I audible now, students? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. okay. Yes, sir. हाँ, ये सॉरी एक्चुअली गलती से कैसे ये मीटिंग में वो फोटो ढूंढ रहा था, वो मीटिंग कैसे एंड हो गया, फिर म्यूट भी हो गया था. ओके, सी नाउ मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारा जो 4 ब्रेकिंग पॉइंट है, नाउ वी हैव आई एम हैविंग 4 ब्रेकिंग पॉइंट्स. दैट मींस एक है 90, एक 180, एक 270, एक 360. वी नो 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये आज डिस्कशन किया. फिर cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, लाइक दैट. अभी हम डिस्कशन करेंगे 90 प्लस थीटा अगर है
सपोज sin 90 प्लस थीटा, उसका रिजल्ट क्या होगा, फिर cos 90 प्लस थीटा, उसका रिजल्ट क्या होगा, फिर 180 माइनस थीटा, 180 में 180 माइनस थीटा हो सकता है, 180 प्लस थीटा भी हो सकता है, उस टाइप सिचुएशन में क्या रिजल्ट होगा, इस टाइप का। फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सब डिस्कशन करेंगे। डज एनीवन नो द फार्मूला? किसी को पता है क्या ये? Suppose I am asking if sin 90 plus theta, can anyone answer what will be the result? cos थीटा है सर, वैल्यूज याद है पर कैसे, मतलब फॉर्मूलाज याद है। अच्छा, ठीक है। तो देखो ये एक लॉजिक है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट यू से मी आई एम डूइंग इट प्रॉपर्ली, एक प्रॉपर फिगर करके आपको बताता हूँ। Direction of angle is anti-clockwise, this, फिर 0, फिर 90, 180, 270, then 360. Okay. Now, first quadrant I am writing it as Q1, quadrant 1. Second quadrant naming it as Q2, Q3 and Q4. Then अगर मैं ऐसे इस सिचुएशन है, यहाँ पे 0 है, तो मैं यहां से अगर जा रहा हूं इस डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव थीटा हो रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में गया तो ऑब्वियसली ये पोजीशन को अगर मैंने थीटा लिया हूं तो ये पोजीशन माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे कि ये है, ऐसा सर्कल ऐसा है तो ये 0 है, तो यहां से अगर 30 डिग्री गया ये पोजीशन को मैं बोलूंगा 30 डिग्री। फिर अगर यहां से ये गया तो ये जो पोजीशन को मैं आई कैन से इट एज माइनस 30 डिग्री, लाइक दैट। Then now can anyone answer me if I am having 90 minus theta, if theta is acute angle, theta is an acute angle, if I take 90 minus theta, in which quadrant it lies? 90 minus theta कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? 90 कहाँ पे है उसका पोजीशन मार्क करो। 90 यहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये यू सी दिस इज 90 माइनस थीटा मतलब इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। अच्छा, जब मैं ये पॉइंटर चलाता हूँ एक्चुअली मुझे तो दिखाई नहीं देता है, आप लोगों को कुछ मार्क देता है रेड डॉट या कुछ? यस सर। ओके, तो 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा कुछ इस साइड को रहेगा, सो 90 माइनस थीटा विल बी इन क्वाड्रेंट 1। देन 90 प्लस थीटा कहाँ पे होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट को नहीं जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा सेकंड, क्योंकि थीटा को मैं एक्यूट एंगल ले रहा हूं। दैट मींस यू सी दिस पोजीशन इज 90, सो 90 प्लस थीटा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। देन 180 माइनस थीटा, पूजा यू हैव टू आंसर, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? सर 180 क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 2 में। देन पूजा इट्स आल्सो क्वेश्चन फॉर यू, 180 प्लस थीटा कहां पे होगा? 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट 3। नाउ मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, देन यू कैन सी 270 माइनस थीटा इज आल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 360 प्लस थीटा अगेन इट विल गो टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो अभी आप लोगों को पोजीशन मालूम पता चल गया। अगर पोजीशन पता चल गया फिर उसके बाद रूल क्या है? उसके बाद रूल ये है कि if we are having 180 or 270, suppose if we are having either 90 or 270, that means this position ये either 90 माइनस थीटा हो सकता है या 90 प्लस थीटा हो सकता है, 270 माइनस थीटा हो सकता है या 270 प्लस थीटा। नो, इफ 90 और 270 है तो इस सिचुएशन में फंक्शन चेंज हो जाता है, चेंज क्या हो जाता है? अगर साइन है तो कॉस बन जाएगा,
अगर cos है तो sin हो जाएगा, जैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा लेते थे। अगर tan है that will be cot, अगर cot है वो tan हो जाएगा। अगर sec है तो cosec हो जाएगा, अगर cosec है वो sec हो जाएगा। एंड फॉर 180 और 360 मीन्स 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, यहाँ पे सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ओके, दैट मीन्स दिस पोजीशन, ये जो पोजीशन में 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, इस सिचुएशन में सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब अगर साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा, टैन है तो टैन होगा, एज इट इज, ये रहेगा। फिर और एक रेस्ट्रिक्शन क्या है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, प्लस और माइनस, प्लस सिंबल और माइनस सिंबल डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। ये जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग साइन 180 प्लस थीटा, तो पहले हम डिसाइड कर लेंगे ये पॉजिटिव होगा ना। फर्स्ट यू डिसाइड इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्लियरली विजुअलाइज कर लेना। विजुअलाइज करने के बाद 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस सिंबल दे दिए। फिर देखें 90 है या 270 है या 180 है या 360 है, यहाँ पे 180 है तो 180 मतलब रूल बोलता है सेम रहेगा, सो इट विल बी साइन थीटा। So sin 180 plus theta, it is minus sin theta. If I am asking tan 270 minus theta, so you see 270 minus theta, 270 minus theta कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। ASTC रूल के हिसाब से ऑल साइन टैन कॉस, तो ASTC रूल के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव सिंबल तुम दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव सिंबल हम नहीं देते। तो 270 है, अगर 270 है तो रूल सेज दैट इन 90 और 270 ये चेंज हो जाता है। चेंज क्या होगा, क्या होगा, कॉट बन जाएगा। सो ये दिस विल बी कॉट थीटा। ओके, अनदर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग cos 90 plus theta, suppose cos 90 plus theta, 90 plus theta lies in which quadrant? Second quadrant। 90 plus theta second quadrant में है, second quadrant में cos नेगेटिव है तो इसलिए माइनस सिंबल दे दिया। फिर 90 है चेंज हो जाएगा, cos चेंजेस टू sin, so it will be minus sin theta। यहाँ पे एक प्रिकॉशन याद रखो, एक स्टूडेंट नहीं, बार बार मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर रिजल्ट तो साइन आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट साइन आ रहा है और सेकंड एंगल, ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में रह रहा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो चीज, ये जो माइनस सिंबल दिया हूं ये पॉजिटिव होना चाहिए। नो, क्या होता है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो ऑलरेडी गिवन है उसी के ऊपर जो हमारा सिंबल है, पॉजिटिव होगा या सिंबल देंगे या नेगेटिव सिंबल देंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। If I have taken, would have taken, suppose I am writing another thing. Suppose cos 90 plus theta minus sin theta. Yeah? If I am taking sin 90 plus theta, so it will be plus cos theta. How? 90 plus theta second quadrant में क्वेश्चन हमारा साइन है तो इसलिए पॉजिटिव रहा, और 90 है तो चेंज हो जाएगा ये cos theta. ओके, समझ में आया? Does anyone have doubt? ये सब चीज सर साइन बोला है, लास्ट जो बोला वो एक बार फिर से बोलो। मैं ये बोला कि ये देखो, जो मैं जहां पे पॉइंटर ले रहा हूं, ये जो पार्ट है, ये बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर आंसर तो साइन आ रहा है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। नो, क्या है, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, कॉस में है तो उसी के हिसाब से सिंबल देखेंगे। कॉस, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्वेश्चन में कॉस है तो ये
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस सिंबल दे दिए। फिर 90, ये जो 90 डिग्री है, रूल बोलता है 90 और 270 में चेंज हो जाएगा। सो ये 90 है, चेंज कॉस चेंजेस टू साइन साइन सिमिलरली 90 प्लस थीटा लिया हूं सेकंड क्वाड्रेंट, क्वेश्चन है साइन, इसीलिए पॉजिटिव सिंबल रहा। फिर 90 के लिए चेंज कर दिया, कॉस बना दिया, लेकिन आंसर जो कॉस आ रहा है इसके साथ इसको कोई रिलेशन नहीं। मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन जो है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, आंसर के ऊपर नहीं। समझ में आया? एनीवन अदर डाउट? तो अभी मैं इसका वैल्यू निकालो, इसको यूज करके। इफ आई एम आस्किंग tan 300 डिग्री, इसका वैल्यू निकाल सकते हो कोई? देखो मैं आप लोगों को सिर्फ रूल बता दिया। अगर आप लोग सपोज 11th, जैसे 11th में स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उस टाइप के होते तो मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल देता, फिर उसके बाद क्वेश्चन देता। बट आई थिंक यू ऑल आर इंटेलिजेंट एनफ, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन करने के लिए। अगर नहीं होगा तो मैं करूंगा। Hello. हाँ Sir, is the answer -1? -1? 1 किसे होगा? हाँ sir. 1 नहीं होगा। Okay sir. ललिता हो गया क्या? Yes, sir. Doing, sir. Sir, कर रही हूँ. तुझे कुछ आइडिया आ रहा है कैसे प्रोसीड करेंगे? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, पहले जो एंगल है ना उसको डिसाइड कर लो कौन सा क्वाड्रेंट में। हाँ, क्वाड्रेंट 4 में। तो क्वाड्रेंट 4 में अगर है उसको हम लिख सकते हैं 270 प्लस समथिंग या 360 माइनस समथिंग। ये जो 300 डिग्री है उसको मैं 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ या 360 माइनस 60 लिख सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ। सपोज मैं उसको ऐसे लिख लिया कि 360 माइनस 60, tan 360 minus 60, ओके। सो tan 360 minus 60, तो tan 360 minus थीटा में जाऊंगा। पहले ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan वहां पे नेगेटिव होगा तो माइनस सिंबल दे दिया। 360 है तो चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि रूल बोलता है 180 और 360 में सेम रहता है। सो माइनस tan 60। नाउ वी विल गो बैक टू द टेबल। टेबल में tan 60 का वैल्यू क्या था? यू कैन मार्क, टेबल जो बनाए हो √3 था। सो द आंसर इज -√3, ओके। सो Sir, hello. Sir, I have taken 270 plus 30 and by doing देखो 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 मैं कर रहा हूँ tan, if you will get the same result 270 plus 30, तो क्लियरली इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो माइनस सिंबल रहा, माइनस सिंबल रहा। फिर tan 270 प्लस 30, 270 है तो चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी माइनस cot 30, माइनस cot 30। और cot 30 का वैल्यू क्या है? tan 60 का वैल्यू जो है cot 30 का वैल्यू भी वही है। सो इट विल बी -√3। यू कैन चेक द टेबल को वैल्यू ऑफ cot 30। tan 45 और cot 45 ये दोनों 1 होता है, ओके। सर भूल से हो गया था, 45 में देख लिया था सर, मेरा -1, मेरा 1/3 आया था, 1/√3 आया। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, और एक देता हूं, देखते हैं कौन क्विकली करता है। sin 240 इसका वैल्यू निकालना है।
So minus root 3 by 2. करेक्ट। तो ट्राई करना ये सब चीज ओरली, जैसे देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ। 240 मतलब 180 प्लस समथिंग, 180 से कितना, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव होगा तो माइनस रह गया। तो 180 प्लस 60, 180 मतलब सेम रहेगा, तो साइन 60 का वैल्यू है √3/2। सो फाइनल आंसर इज -√3/2। ऐसे ही करना है, ओरली करना है जैसे। अच्छा नेक्स्ट, now फिर और कुछ चीज याद रखो। इस पेज को इरेज कर सकता हूँ, बाकी जो पेज चाहिए आपको मुझे बोलना कि कुछ नोट डाउन अगर करना है। मैं सारे व्हाइट बोर्ड रखा हूँ, इस पेज को तो इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फिर now we will discuss about if theta is acute, then what will be value of sin minus theta? Sin minus theta, this can be written as, देखो मैं 4 पॉइंट के लिए डिस्कशन किया, 90, 180, 270, 360, जीरो के लिए डिस्कशन नहीं किया था अभी तक। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, उस सिचुएशन में कर लिया। साइन माइनस थीटा अगर है, that means you see if theta is acute, then plus theta will be in first quadrant, that means this position is theta. So माइनस थीटा कहां पे, इस साइड में जाएगा। अगर प्लस थीटा इस साइड में जा रहा है तो माइनस थीटा इस साइड में जाएगा। तो here this position will be minus theta. So minus theta lies in which quadrant? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। सो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन तो वहां पे नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देन कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये क्या होगा? So cos theta. Cos theta. Why? Because in as per ASTC rule, all sin tan cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो then it will be cos theta. Then tan of minus theta, it's obvious thing, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है, so it will be minus tan theta. So ये याद रख लो कि if we take sin of minus theta and tan of minus theta, this both are negative, but cos of minus theta it remains positive as it is, वो रहता है, cos of minus theta plus cos theta हो जाता है। So similarly cos of minus theta अगर plus cos theta हो रहा है, तो और कौन सा वाला वही प्लस ही रहेगा। cos का रेसिप्रोकल क्या है, sec, so sec of minus theta is also plus sec theta, but cosec of minus theta इसका रेसिप्रोकल, cosec of minus theta minus cosec theta, and of cot of minus theta minus cot theta, like that. Okay, then और कुछ फॉर्मूला डिस्कशन करना है। इस चीज को जिसको याद नहीं नोट डाउन कर लो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, ये जरूरत पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इफ आई राइट साइन थीटा इज साइन मल्टीप्लाइड विथ थीटा, नो, ये चीज तो मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर करवाया हूं। साइन इज द नेम ऑफ द रिलेशन, सो इफ आई राइट इफ ए इज वन एंगल बी इज वन एंगल, देन साइन ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों सेम रहेगा क्या हमेशा? No sir. ये और ये दोनों नॉट नेसेसरी हमेशा सेम रहेगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक दे देता हूं, इफ आई टेक a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 60, then left hand side LHS is sin a plus b, that means sin of 30 plus 60, 30 plus 60 is
90, तो साइन 90 इसका वैल्यू 1 होता है। एंड RHS राइट हैंड साइड साइन A प्लस साइन B, दैट मीन्स साइन 30 प्लस साइन 60। टेबल का वैल्यू ले लेंगे, साइन 30 इज 1/2, साइन 60 इज √3/2, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस √3/2, जिसका वैल्यू देखो अप्रोक्सीमेटली 1 से ज्यादा रहेगा क्योंकि √3 का वैल्यू 1.732, सो 1 प्लस 1.732 इट विल बी 2.732 डिवाइडेड बाई 2, सो इसका वैल्यू 1 से ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। तो ये चीज याद रखो, साइन A प्लस बी एंड साइन A प्लस साइन बी ये दोनों इक्वल नहीं। तो अभी आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है, मैं उस फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है लेकिन बेसिक थिंग है, तो इसलिए मैं अभी आपको एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, उसमें से जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो नोट डाउन कर लो। अच्छा, another student aspirant is here, Vikalp. Vikalp, am I audible to you? Respond please. हाँ विकल्प, आपके साथ तो अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं हुआ। आप क्या वीकेंड क्लास में थे क्या सुमंत के साथ? लास्ट क्लास में था। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना कि अब समझा रहा हूँ? हाँ ठीक है, अगर कहीं पे डाउट रहेगा तो मतलब ये मुझे बोल देना कि सर हाँ प्लीज होल्ड ऑन। ओके, जी ठीक है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, दीज आर द फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को कैसे याद भी रखना है मैं भी उसका आपको ट्रिक बताऊंगा। प्रलिता, याद है ये सारे फॉर्मूलास? क्योंकि तुम्हारा बीटेक में शायद जरूरत पड़ रहा होगा ये सब। हाँ सर, याद है। अच्छा प्रलिता, यू आर इन बीटेक व्हिच ईयर नाउ? सर थर्ड ईयर कंप्लीटेड। थर्ड ईयर कंप्लीटेड, तो मैथ्स Yeah. छोड़ के एंड योर स्ट्रीम इज, योर ट्रेड इज कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस। साइंस, यस सर। तो मैथ्स का ये सब जरूरत नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन याद हो, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, याद है ना? नहीं सर, अभी नहीं, मतलब जो याद है सर। यस सर। हाँ ठीक है, जिसको फॉर्मूला मालूम नहीं, ये फॉर्मूला लिख लो पहले। नहीं तो मैं सेंड कर दूंगा भाई नयन। पहले देखो ये फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साइन A प्लस बी में। ये देखो, इसको रिलेट ऐसे में मैंने किया है कि साइन इज ए गुड पर्सन एंड कॉस इज ए सेल्फिश वन। साइन अच्छा आदमी है, कॉस एक सेल्फिश है। कैसे कि मार्क करो, साइन का जो फॉर्मूला है, साइन A प्लस बी हो या साइन A माइनस बी हो, साइन खुद रहता है और कॉस को भी बुलाता है। साइन A इंटू कॉस बी, फिर साइन B इंटू कॉस A, और कॉस A इंटू साइन B। मतलब दोनों फॉर्मूला में देखो ये साइन खुद रहता है और कॉस को भी बुलाता है। तो इसीलिए वो जहां पे प्लस है वो प्लस रहता है, जहां पे माइनस है तो माइनस रहता है। लेकिन कॉस एक सेल्फिश है। कॉस सेल्फिश है क्या है कि कॉस का जब फॉर्मूला आएगा वो हमेशा पहले रह जाएगा, कॉस खुद दो बार रह जाएगा, कॉस A इंटू कॉस बी देन माइनस साइन A इंटू साइन बी। तो इसीलिए उसका जब प्लस होता है, मतलब ये इतना सेल्फिश है तो गॉड ने उससे पनिश किए कि अगर तू पॉजिटिव करना चाहेगा तो वो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए कॉस A प्लस बी, कॉस A इंटू कॉस बी, कॉस खुद दो बार रहेगा लेकिन प्लस है तो माइनस रहेगा बीच में, माइनस साइन A इंटू साइन बी, देन कॉस A माइनस बी इक्वल टू कॉस A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। फिर ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके tan A प्लस बी याद रह जाएगा, tan A प्लस tan B अपन 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो tan में जहां पे प्लस है न्यूमरेटर में प्लस रहेगा, डिनोमिनेटर में माइनस होगा। अगर बीच में माइनस है तो जहां पे माइनस है मतलब न्यूमरेटर में माइनस होगा, डिनोमिनेटर में प्लस होगा। दीज आर द फॉर्मूला। ओके, नाउ नोट डाउन हो गया या मैं नेक्स्ट पेज को जाऊं या रुकना है? किसी को, कोई अगर चाहता है रुकना है तो बोल दो, नहीं तो नेक्स्ट पेज जाता हूं। ओके,
Now we'll try to find out some other values. Some other values means let's try to find out what is the value of sin 15 degree. Sin 15 डिग्री ये कैसे निकालेंगे? हमें वैल्यू मालूम है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये सब वैल्यू मालूम है. तो sin 15 डिग्री will take it as sin 15, that means 45 minus 30. I can write it like this. बट देखो जैसे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा था, ऐसे 45 माइनस थीटा का कुछ फॉर्मूला नहीं है क्योंकि 45 ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है हमारा यहाँ पे. एक्चुअली हियर वी आर हैविंग 5 ब्रेकिंग पॉइंट्स, एक है 0, एक 90, 180, 270, देन 360. But 45 is here. It is not a breaking point. So how to do this? We will apply, means sin 15 degree. We'll apply sin 45 minus 30. So apply the formula sin A minus B. Formula is sin A sin 45 into cos 30. Sin A into sin B minus cos A into sin B. Sorry, sin A into cos B minus cos A into sin B. That means sin 30. So sin 45 is 1 by root 2, cos 30 is root 3 by 2 minus cos 45 1 by root 2, sin 30 is 1 by 2. So mark करो इसका denominator here, the denominator is 2 root 2, here the denominator is also 2 root 2. So its value will be root 3 minus 1 by 2 root 2. Okay, so you have to memorize these values. So I have sin 15 degree equal to root 3 minus 1 by 2 root 2. पूजा sin 15 का वैल्यू जो है cos कितने का वैल्यू वही रहेगा? cos 2 root 2. अरे नहीं मैं पूछ रहा हूँ जैसे sin 30 का वैल्यू जो है cos 60 का वैल्यू वही रहता है. सिमिलरली sin 15 डिग्री का वैल्यू जो है cos कितना डिग्री का वैल्यू वही रहेगा? 30 का. अरे 30 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये अगर यहाँ पे जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में पूछा ना sin 10 डिग्री, हाँ cos कितना डिग्री के साथ इक्वल होगा? अब 90 minus 80 degree. 80 डिग्री. Similarly, my question is if I am having sin 15 डिग्री का वैल्यू ये है तो वो cos कितने डिग्री के साथ इक्वल होगा? 75 sir. हाँ, so it will be cos 75 डिग्री. ओके, तो sin 15 डिग्री का वैल्यू जो है cos 75 का भी वैल्यू वही रहेगा. अच्छा, now can you find out this value sin 75 डिग्री? sin 75 Yes, कैसे sir. निकालेंगे? सर कर sin देता हूँ, 30 time वाला waste मत करो. हाँ, कर देता हूँ. sin 75 अगर चाहिए sin 30 plus 45. 45 प्लस 30 मतलब यहाँ पे अगर मेरा 75 डिग्री है तो ये 45 प्लस 30 आएगा. तो sin 45 इंटू cos 30 प्लस cos 45 इंटू sin 30. सो ये बीच में प्लस हो जाएगा. सो ये फाइनल आंसर आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2. सो I can write sin 75 equal to root 3 plus 1 by 2 root 2. जैसे sin 15 cos 75 के साथ इक्वल हो रहा था, सिमिलरली sin 75 cos 15 के साथ भी इक्वल होगा. ओके, तो ये वैल्यू हमें याद रखना है. और एक चीज आपको बोल रहा हूँ, गौर से मार्क करो, मार्क इट केयरफुली. बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ये जो प्लस और माइनस में कि sin 15 रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 या रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, क्योंकि दोनों वैल्यू सिमिलर दिख रहे हैं, सिर्फ प्लस माइनस का ही फर्क है.
तो इसको कैसे हम ओवरकम करें, किससे याद? सो हाउ टू प्रोसीड? ये देखो साइन का टेबल मार्क करो, जो टेबल लिखा हूं, पहले 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, फिर उसके बाद ये बढ़ता ही जाता है वैल्यू, जैसे एंगल बढ़ता जाएगा साइन का वैल्यू ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 90 डिग्री में जाकर ये 1 हो गया, उसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। दैट मींस as angle increases, listen carefully, as angle increases then the value of sine also increases. That means if I take sine 24 degree and the value of sine 48 degree, दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा होगा? sin 24 और sin 48, among sin 24 and sin 48, उसमें वैल्यू किसका ज्यादा होगा? आंसर someone please, या नहीं सुन रहे हो? तो 48 का दोबारा बोल रहा हूं कि साइन का टेबल मार्क करो, 0, फिर 1/2, 1/2 मीन 0.5, फिर 1/√2, फिर √3/2, देन 1। मतलब as the angle increases then the value of sine also increases. So if 24 डिग्री and 48 डिग्री ले रहा हो तो 48 डिग्री ज्यादा है, तो साइन 24 से साइन 48 का वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए 15 और 75 दोनों में 75 ग्रेटर है, तो इसीलिए 75 में वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो क्लियरली √3 - 1, अगर इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो अगर यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है तो और यहाँ पे प्लस हो रहा है, देन ऑब्वियसली प्लस वाला थिंग, द प्लस सिंबल जिसमें है उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, इसका वैल्यू कम रहेगा। तो इसीलिए साइन 75, याद रखो, ठीक है, एंगल इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस, तो इसीलिए 75 ज्यादा है, तो इसीलिए √3 + 1/2√2, 15 कम है तो √3 - 1/2√2। क्योंकि ये चीज बहुत बच्चों का कंफ्यूजन में देखा हूं कि एग्जाम में कॉपी चेक करूंगा ना, पूरा क्लास में मैं आई एम टेलिंग, this was it was a class around 55 or 56 students. Out of 56 students 40+ बच्चे गलत किए थे, ये कि 15 की जगह प्लस ले लिए, 75 की जगह माइनस ले लिए। तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना, 75 वैल्यू ज्यादा है तो ये रहेगा। ओके, देन नाउ यूजिंग दिस, ये तो नोट डाउन करना है आपको। आई एम आस्किंग साइन 105, इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालो। साइन 105 डिग्री, किसी का भी नहीं है अभी तक? 105 कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो क्या? सर कर लिया सर। हाँ, कितना आया? सर पूरा आंसर नहीं हुआ, मैं अभी कर रहा हूँ। sin 45 - sin 30, मतलब sin 45 - 30। अरे पागल क्यों कर रहे हो ऐसे? 105 कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड सर, पॉजिटिव होगा उसका वैल्यू। लेकिन सर होगा, फिर देखो उसको 45 प्लस इतना करने का क्यों जरूरत है? उसको इससे इजीली कर सकते हैं ना। 105 मतलब आइदर 180 - 75, हाँ, या 90 + 15। तो उसे हाँ, जो 180 - थीटा या 90 + थीटा उसी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद तो स्टैंडर्ड वैल्यू पता है हमें ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ सर। इफ यू टेक साइन 105 में तुम बोल रहे हो साइन, जैसे इसको साइन 45 + 60 कर रहे हो। नहीं सर, और सर मैं वैसे नहीं किया। और क्या कर रहे हो? सर मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे ही पकड़ा, लेकिन उसका तो वैल्यू 15 आया ना, 90 + 15। हाँ, ये ऐसे इजीली हो जाएगा। साइन 105 मतलब साइन 90 + 15 डिग्री। 15, हाँ सर वैसे किया। हाँ, 90 + 15 मतलब साइन 90 + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट 90 + थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा, फिर साइन
मतलब ये 90 है तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 15। cos 15 का वैल्यू तो हमें पता है ना, अभी हम डिस्कशन किए, मैं बोला कि उसको स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह याद रख लो। cos 15 जो है sin 75 वही है, तो नाउ वी विल राइट इट एज sin वैल्यू ऑफ cos 15 दैट इज sin 75 व्हिच इज √3 + 1 by 2 √2। ओके, लाइक दैट। सो समझ में आया हर किसी को या किसी का कंफ्यूजन है? ओके, देन फिर if we are having tan 15 degree, tan 15 that is sin 15 by cos 15, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो जाएगा 2 √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा √3 - 1 by 3 + 1। tan 15 जो है cot 75 वही रहेगा, और अगर tan 75 चाहिए तो ऐसे उस जस्ट इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 + 1 by √3 - 1। तो याद रखो tan में जब एंगल कम रहता है इसका वैल्यू कम रहता है, तो ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा। जब tan में एंगल ज्यादा होगा 75 होगा तो ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा। सो इसका वैल्यू ये भी लिख लो, इसको भी याद रखना है आपको। tan 15 is √3 - 1 by √3 + 1 and tan 75 इसका रेसिप्रोकल √3 + 1 by √3 - 1। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अच्छा नाउ ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। ट्रिगोनोमेट्री का सीडीएस या एफकैट तक जितना जरूरत है ये कर दिया। फिर टुमारो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल डिस्कशन करूंगा। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस व्हाइट बोर्ड से, अच्छा ये अभी आपको 4 व्हाइट बोर्ड दिख रहा है या कुछ भी नहीं दिख रहा है? एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, tan 15 tan अच्छा 75। ठीक, ये व्हाइट मतलब, और ये एक बोर्ड है, नेक्स्ट ये एक बोर्ड है, नेक्स्ट ये तो समझा है क्वेश्चन, और एक tan 15। आई होप सब लिख लिए हो आप लोग। मैं अभी क्वेश्चन शेयर करता हूँ आपको, क्वेश्चन आपको करना है। हाँ, बिफोर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन देने से पहले मैं और एक इजी क्वेश्चन, लेकिन कॉमन क्वेश्चन है, वो डिस्कशन कर लेता हूँ। सपोज you might have seen this question, tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree dot up to tan 89 degree it is। इसका वैल्यू क्या होगा, किसी को याद है क्या? सर 1 कैसे हुआ? DM and 1 is equal, okay, देखो 90 minus, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, जिसको समझ में नहीं है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज मैं tan 1 और tan 89 ये दोनों को ले लिया, सिर्फ tan 1 और tan 89 ये दोनों को पास रख के अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, tan 89 tan 1 89 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 - 1। 89 की जगह
90 माइनस 1 लिख दिया, फिर अप्लाई किया इसमें tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो मैं यूज किया कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज किया, दैट इज cot 1, फिर इसके बाद इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करूंगा, दैट मींस tan 1 degree into cot theta is 1 by tan theta, that is cot 1 is 1 by tan 1. So tan 1 get cancelled, then this will becomes 1. As tan 1 into tan 89 ये दोनों 1 हो रहे हैं, फिर tan 89 से पहले tan 88 रहा होगा, यहाँ पे tan 88, तो tan 2 और tan 88 ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, फिर tan 3, फिर tan 3 और यहाँ पे होगा tan 87, ये भी 1 आ जाएगा। इसी तरह हर एक 1 आ जाएगा, लेकिन बीच में एक टर्म रह जाएगा कौन सा tan 45, लेकिन tan 45 का वैल्यू भी 1, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया 1 आपका। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है। किसी को पूजा समझ में आया ना ये क्वेश्चन? हाँ सर समझ में आया। Okay, then I am giving you another question. Question is this. प्रियम has already written. प्रियम जब भी ऐसे आंसर करते हो ना, तो जो मैसेज करते हो प्राइवेटली मुझे ही मैसेज करो, बाकी लोगों को करने दो, उनको आंसर पता चल जा रहा है। और किसी का हुआ या एक्सप्लेन करूं? Yes, sir. Vikalp, you want me to explain this one? You have raised your hand. I don't know. समझ में नहीं आ रहा है आप क्या, मतलब आपका आंसर हो गया या एक्सप्लेन करना है? हाँ सर एक्सप्लेन करूं? हाँ सर एक्सप्लेन। ओके ओके ओके। See, the question is, sin square 6 plus sin square 12 plus dot
sin square 84 plus sin square 90. सी यहाँ पे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करेंगे। देखो 84 और 6 ईच अदर का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों मिलके 90 डिग्री बनेंगे ना, 84 एंड 6। सो साइन स्क्वायर 84 इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 6 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर 84 का मतलब जो है साइन 84 का होल स्क्वायर का मतलब ही वही है। दैट मींस साइन 84 की जगह साइन 90 माइनस 6 लिख दिया। सो साइन 90 माइनस 6 इट्स cos साइन 90 माइनस 3 इज cos थीटा। सो cos 6 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी cos स्क्वायर 6। नाउ साइन स्क्वायर 6 प्लस cos स्क्वायर 6 वी नो 1, तो ये दोनों मिलके दैट मींस साइन स्क्वायर 6 एंड साइन स्क्वायर 84 ये दोनों मिलके 1 बना रहे हैं। सिमिलरली साइन स्क्वायर 12 उससे पहले जो रहेगा वो भी 1 बनाएंगे ऐसे। तो 6 से देख लो कितना टर्म्स है 6 इंटू 7 42, मतलब 6 इंटू 14 इज 84। तो आउट ऑफ 14 टर्म्स दो टर्म एक पेयर हो रहे हैं, तो दैट मींस अगर पेयर करेंगे तो 7 पेयर बनेंगे, ईच पेयर वैल्यू इज 1। सो 1 plus 1 plus 1, 1 is added 7 times, so ये टोटल वैल्यू हो गया, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हो गया 7। फिर sin 90 का वैल्यू है 1, so 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, so फाइनल 7 plus 1 that is 8। ओके कुछ नहीं समझे शायद? नहीं सर, हम्म, नहीं सर, कॉस्ट तक समझ में आ गया, बट उसके बाद से- अच्छा ठीक है। अभी देखो साइन स्क्वायर 6 और साइन स्क्वायर 84 ये दोनों के 1 आएंगे, ये पार्ट समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद अभी नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन। तो 84 से पहले ये सारे 6 के मल्टीपल्स रह रहे हैं ना, 6 देन 12 देन 18 लाइक दैट। ओके, सो 84 से पहले 14 7 14 6 है 84, उससे पहले 13 6 78 रहेगा। देन क्या होगा कि ये जो साइन स्क्वायर 12 है, ये साइन स्क्वायर 12 और इससे पहले जो रहेगा ये दोनों मिलके 1 आएंगे। तो ऐसे कितना टाइम 1 आएंगे कि 84 यहां तक जो है 84 दैट मींस 6 इंटू 14, 84 जो है दैट इज 6 इंटू 14, ये गलती से कुछ 6 इंटू 14। सो अगर 6 इंटू who is drawing on something? Don't do this please. So 84 is 6 into 14, that means total 14 terms we are having here, up to here we are having 14 terms, और यहां तक 15 terms। देखो 15 6 या 90, तो ये 15 टर्म हो गए। लेकिन ये जो 14 टर्म तक क्या होगा, each two terms making value 1, each two terms are making value 1, so first and this and this 1, ऐसे कितना बार 1 आएगा कि 14, अगर टोटल 14 टर्म से एंड 2 टर्म को लेके तो 14 डिवाइड बाय 2, ये 7 टाइम्स 1 आएगा। सो 1 इज एडेड। हेलो, हाँ सर, हेलो, समझ में आया? ये हाँ जो सर, समझ 7 कैसे आया, तो 7 फिर ये रहा साइन 90, साइन स्क्वायर 90, दैट मींस 7 plus 1, दिस विल बी 8। नाउ और एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन
जिसको भी आंसर आएगा वो सिर्फ ए बी सी या डी मुझे प्राइवेटली चैट में सेंड करो। जिसका देखते हैं किसका कितना क्विकली आता है आंसर। प्रियम हैज आंसर, प्रियम इज करेक्ट, प्रियम सबसे पहले आंसर दिया, फिर उसके बाद देखते हैं और किसका आंसर आता है। अगर आपको √2 या फ्रैक्शन में लिखने का प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ ऑप्शन लिख दो ए बी सी डी। अरे और किसी का भी नहीं आ रहा है। प्रलिप्ता क्या हुआ? Sir, I like पता नहीं sir how to approach this. अच्छा बस सरजीत नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, टाइम हो रहा है, एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर टुमारो और कुछ क्वेश्चन हो सके तो आज रात को सेंड करूंगा, नहीं तो टुमारो डिस्कशन करेंगे। अच्छा देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन में ये जो पार्ट दिया है 0 लेस देन 6 थीटा लेस देन पाई बाय 2, जस्ट इग्नोर इट। ये कोई काम का नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि tan 6 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो दोनों एंगल डिफरेंट है, ये दोनों एंगल। तो यहाँ पे जब एंगल डिफरेंट होता है तो हम रेसिप्रोकल रिलेशन, tan और cot का रेसिप्रोकल रिलेशन है और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, लेकिन एंगल अगर सेम होता तभी हम रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करते, मतलब cot की जगह 1/tan लिखते, लेकिन एंगल डिफरेंट है। सो नाउ आई कैन राइट इट एज tan 6 थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot is we know cot थीटा इक्वल tan 90 माइनस थीटा, सो cot 2 थीटा की जगह tan 90 माइनस 2 थीटा ये लिख सकता हूं। ओके, सो tan मार्क हियर tan 6 थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस 2 थीटा, सो 6 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, सो 6 थीटा प्लस 2 थीटा, मतलब 2 थीटा इस साइड आ गया, ये हो जाएगा 8 थीटा इक्वल टू 90 implies थीटा इक्वल टू 90/8। इसको ऐसे ही रखो। देन वी आर आस्क्ड sec 4 थीटा, sec सर 90/8 क्यों आ रहा है? 80 सब। अच्छा वो 8 थीटा, थीटा हाँ 8 थीटा इक्वल, एक्चुअली ये क्या है, ये एक मैं
एक पर्टिकुलर पेन से लिखता हूँ, ये बहुत गंदा हैंडराइटिंग होता है। मेरा हैंडराइटिंग यूजुअली ऐसा नहीं है, मेरा हैंडराइटिंग बहुत अट्रैक्टिव रहता है। सो नाउ sec 4 थीटा इक्वल टू sec 4 इंटू थीटा की जगह 90/8 ये डाल दिया। 4 इंटू 90/8, सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट इज 90/2 इज 45 डिग्री। देन sec 45, sec 45 मतलब cos 45 का रेसिप्रोकल। cos 45 you can see from the table 1/√2, तो sec 45 हो जाएगा √2। ओके, so this is the answer। so this is the wrap of the session। और कुछ क्वेश्चन हो सके तो जो जो फॉर्मूलाज दिया प्लीज ट्राई टू मेमोराइज दोस फॉर्मूलाज, और जैसे जैसे रिलेट किया कि ASTC रूल और साइन इज ए गुड पर्सन, कॉस इज ए सेल्फिश वन, ये सब फॉर्मूला को ऐसे एक बार पढ़ना और याद करना कि सर ने ऐसे बताए थे, तो याद रह जाएगा इजीली। ओके, सो दिस इज द रैप ऑफ द सेशन। सी यू टुमारो एट 7 o'clock। गुड नाइट एवरीवन। Good night. Sir. Good, sir. Sir, anyone is saying something? Good night. Okay, कुछ अब हाँ विकल्प हाँ विकल्प, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। एक्चुअली पूजा को कुछ डाउट है, कल कंप्लीट नहीं हो पाया था। अगर आप रहना चाहो तो रह सकते हो, नहीं तो आप भी ड्रॉप हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ पूजा, आई एम प्रोसीडिंग टू, कल जो चीज बताया था उससे आगे और एक क्वेश्चन बताता। कल आपको स्क्वायर वाला नहीं बताया था ना, स्क्वायर क्यूब वाला एक नहीं चीज। सर, बस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। हाँ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ये सब डिस्कशन किया था। फिर ये आपको स्क्वायर वाला जो है, सपोज एक क्वेश्चन से प्रोसीड करता हूँ। सपोज वी आर हैविंग x minus 1 4 x minus 5 then x minus 6 this is greater than or equal to 0। इस टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कशन किया था, दोबारा कर देता हूँ। तो यहाँ पे 6 ब्रेकिंग पॉइंट्स विल बी देयर, क्योंकि हर एक टर्म को जीरो करो। ये इसको अगर जीरो कर रहे हैं x इक्वल टू 1, तो इसके लिए 2 3 4 5 6 ऐसे आएंगे। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इस सबका कोएफिशिएंट देखेंगे। कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो हर किसी का पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव रहेगा। सो स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। राइट मोस्ट साइड में मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, हमेशा अल्टरनेट होकर चलता है। फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। एक्चुअली हमें अभी क्वेश्चन को वापस जाना है। क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब हमें पॉजिटिव कहाँ पे है वो चाहिए। पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से आगे। तो दैट मीन्स विल राइट x बिलोंग्स टू, तो जब बताओ कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, कैसे? पूजा आर यू देयर? हाँ सर। हाँ मैं भी आपको पूछ रहा हूँ। इसके बाद ना
हाँ सर इंफिनिटी इंफिनिटी तो आएगा हाँ इंफिनिटी इंफिनिटी मतलब सर उसके बाद तो पहले इंफिनिटी फिर 1 हाँ ये इंफिनिटी नहीं है, ये माइनस इंफिनिटी है। ये जो इस हाँ साइड माइनस में हाँ 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 विल राइट माइनस इंफिनिटी टू 1, फिर ब्रैकेट बाद में दूंगा, फिर हाँ यूनियन। और कहाँ पे पॉजिटिव है, जहाँ पे रेड मार्क है, कहाँ पे 2 3, 2 और 3 फिर यूनियन। और कहाँ पे है, और सिर्फ 6 ये हाँ 4 और 5 में भी है 4 से 5 5, फिर हाँ कहाँ पे है 6 टू 6 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी ओके, हाँ नाउ ब्रैकेट देंगे, इंफिनिटी में ओपन ब्रैकेट, हाँ इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट और लास्ट में भी 1 इंफिनिटी में, ओपन ब्रैकेट हाँ यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। 1 में ओपन देंगे या क्लोज देंगे। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये होता कि सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तो हर हाँ किसी में मैं ओपन ब्रैकेट देके ओपन चल, ब्रैकेट दे देता हूँ हर किसी में। लेकिन क्वेश्चन ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हर किसी में ओपन ब्रैकेट नहीं रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये देखो, तो अगर 1 ले रहा हूं तो 0 कहाँ पे आ रहा है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? तो 0 तो न्यू न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में। आएगा हाँ तो न्यूमरेटर में आ रहा है तो क्लोज ब्रैकेट दूंगा। फिर 2 भी न्यूमरेटर में है, कहाँ पे, हाँ इस जगह पे, ये इस तरह का तो हाँ वो भी ये भी क्लोज ब्रैकेट। 3 के लिए भी क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि क्लोज 3 भी ब्रैकेट न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में भी है 4 डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए हाँ 4 को ओपन ब्रैकेट, ओपन टू 5 आई डिनोमिनेटर भी में ओपन हाँ ब्रैकेट, 6 भी डिनोमिनेटर में ओपन ब्रैकेट, ओपन लाइक। तो ये हो गया। ओके, हाँ फिर अभी देखो ये क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को करूंगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। x-2 होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पावर 3 है, x-4 का क्यूब है, x-5 का पावर 4 है, x-6 का पावर सपोज 7 है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, वही ब्रेकिंग पॉइंट लेंगे, हाँ वही ब्रेकिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 6। अच्छा पूजा, ये क्वेश्चन प्रोसीड करता हूँ, मैं कुछ बात करना था आपसे। आप अभी क्या पढ़ रहे हो? सर मैं अभी ज्योग्राफी ऑनर्स सेकंड ईयर बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स। हाँ हाँ अच्छा, आपका 12th जो है वो कौन सा, सीबीएसई स्कूल या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड? सर वेस्ट बंगाल बोर्ड हाँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो मतलब वहां पे आपका जो टीचिंग का मीडियम जो होता है, मतलब लैंग्वेज जो होता है, वो ज्यादातर इंग्लिश रहता है या ये बंगाली रहता है? ये बंगाली बंगाली, अच्छा, इसीलिए। अच्छा, हाँ वही तो, मतलब कुछ कुछ टर्म तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैथमेटिकल टर्म, मतलब ऑड नंबर इवन सर नंबर ओनली पता है क्या है? ऑड नंबर ऑड नंबर इवन नंबर क्या है, पता है या नहीं? नहीं सर जुग्म, जुग्म अजुग्म। हाँ हाँ सर हाँ, दैट जुग्म इज इवन, मतलब 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर है। इवन हम्म, नंबर एंड अजुग्म मीन्स ऑड, ऑड 1 3 5 7 ये सब ऑड है। ओके,
सो यहाँ पे नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे मार्क करो जहां पे पावर इवन नंबर है। कहाँ पे पावर? यहाँ पे पावर इवन है। x-2 में ऊपर भी है, हाँ, यहाँ पे पावर ऑड है, x-5 में, हाँ उधर ऑड है, यहाँ पे पावर इवन है, हाँ यहाँ पे पावर ऑड है। और ऑड है, तो हाँ तो रूल ये बोलता है कि जहां पे पावर इवन रहेगा उसको सर्कल बना दो, उसी पॉइंट को सर्कल बना दो। कहाँ पे पावर इवन है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हाँ। 2 को सर्कल बना दिया, हाँ 2 को एक सर्कल बना दिया, फिर 5 को एक सर्कल मिनट। बना दिया। ओके, सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे? उन दोनों को इग्नोर करो, उन दोनों को इग्नोर करो, ये और ये दोनों को जहां पे सर्कल बनाया हूं उसको इग्नोर करके बाकी का कोएफिशिएंट देखो। बाकी कोएफिशिएंट इसका पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, हाँ, इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव। इसका भी तो पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव हो रहा है। देन हाँ। स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। आज जैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हाँ। पॉजिटिव होगा, यहाँ पे Positive नेगेटिव होगा। यूजुअली negative। क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता है। लेकिन हाँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वही नेगेटिव रहेगा। ओके, ये समझ में आया? जहाँ पे सर्कल बना होगा वहां पे चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट है, तो ये चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर्कल है तो ये नहीं होगा, नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये से प्लस माइनस सिंबल दे दिए। प्लस माइनस सिंबल देने के बाद अभी जाएंगे, नाउ विल गो बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव कहाँ पे है? क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर पॉजिटिव चाहिए तो जहां पे पॉजिटिव है उसको मार्क कर दूंगा। कहाँ पे पॉजिटिव है? यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं कैसे? वी विल राइट x बिलोंग्स टू -infinity to 1 यूनियन 3 to 4, फिर यूनियन 6 to infinity। ओके, सो माइनस इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट, 1 में क्लोज ब्रैकेट, फिर 3 में क्लोज ब्रैकेट। क्यों? 3 न्यूमरेटर में है, मार्क करो ये। लेकिन 4 में ओपन ब्रैकेट। क्यों? 4 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर 0 नहीं बना सकता। 6 to 6 में भी ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। ओपन। ओके, हाँ ठीक है, आज इतना ही। फिर कल मुझे और 10 मिनट 15 मिनट ऐसे टाइम देना। आज एक्चुअली टाइम हो गया, फिर मैं नहीं ठीक है सर, ठीक है। हाँ कल भी आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, इसी रिलेटेड और एक क्वेश्चन समझाऊंगा। ओके ओके ठीक सर। तब अगर ये ग्रेटर देन है ना तो उसको लेस देन करके एक भी समझ देना। अच्छा, हाँ ठीक है। अगर लेस देन है तो जहां पे नेगेटिव है उसी को लेंगे। सपोज ये क्वेश्चन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना होके ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये सब हम लिए थे। अगर लेस देन 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो क्या लेंगे? जहां पे नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ पे है? नेगेटिव जहां पे है उसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। नेगेटिव, ये नेगेटिव है, फिर ये नेगेटिव है, फिर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। हाँ, तो क्या लिखेंगे? वी विल राइट x बिलोंग्स टू, पहले कहां से? 1 से 2, फिर यूनियन 2 से 3, यूनियन 4 से 5, फिर यूनियन 5 से 6। फिर अभी देखेंगे 1 में क्लोज ब्रैकेट, 2 में भी क्लोज ब्रैकेट, फिर 2 में क्लोज ब्रैकेट, 3 में क्लोज ब्रैकेट, 4 में ओपन ब्रैकेट आ गया, 4 में ओपन, 5 में ओपन, फिर 5 ओपन, 6 ओपन। अच्छा, लेकिन ये फाइनल आंसर ये नहीं रहेगा। फाइनल आंसर क्या होगा? देखो 1 से 2, ये जो पार्ट में 2 को ले रहे हैं, 2 क्लोज ब्रैकेट दिया है, सो 2 इज इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड? इंक्लूडेड मतलब समझ रहे हो ना? 2 को मैंने लिया हूं या नहीं लिया हूं इसमें? हाँ सर लिए हैं। हाँ 2 के लिया है।
ये देखो एक्चुअली क्या है, जो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे 4 to 5, 5 is not taken, here 5 is also not taken, so यह क्या होता है ना 4 से 5 then 5 to 6, बट ये जो पॉइंट है 5 के ऊपर जो पॉइंट है 5 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ब्रेकिंग पॉइंट और नहीं है, 1 से कंटिन्यूअसली 3 तक जा रहा है, सो दिस विल बी, so 1 to 2 union 2 to 3, it will be written as directly, this can be written as 1 to 3, 1 to 2 और 2 to 3 ना लिख के उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 से 3, 1 क्लोज 3 क्लोज, लेकिन इसको डायरेक्टली 4 to 6 नहीं लिख सकते, क्यों? 5 में ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट में, ओके ठीक है, कल इस रिलेटेड और एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है सर। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। बाय, गुड नाइट बेटा। हाँ गुड नाइट सर।